अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। अपनी शान और शौकत को पहचान जरा, बांध कफन हथियार उठा और मैदान में अपने हुनर तू दिखा। मत गडन अब आन पड़ा दज्जाली सीने तान करा, खुद ही कर ले नस्लों के दीपा। ए मोमिन तू जोश दिखा दे, जोश में अपने होश दिखा दे, फिर एक बार ये नारा तू लगा। बिखरे फूल नहार बने हैं, ना ही दे कोई इनको तरजीह। मोती Ertugrul Gazi is a classic and historic drama based on the 13th century Turkish warrior Ertugrul, who was the son of Süleyman Shah and the father of Osman I, the founder of the Ottoman Empire. Ertugrul was the leader of the Kadi tribes who came to Anatolia to escape the Mongol conquests and establish the settlements that later became the Ottoman Empire. The television adaptation of Ertugrul Gazi is a tremendous project of a total of 550 episodes with extravagant cinematography, a mind-blowing screenplay, and the most expensive costumes. Due to limited resources and time constraint, Asabri has chosen the most important portions of the story and condensed the drama to a total of 1 hour and 15 minutes. It was almost impossible to reduce the drama in that time limit, but Gargi has spent night after night working hard to do so. It's a story of 3 generations: Süleyman, Ertugrul, and Osman, and Gargi has chosen the most dangerous villains, Ural and Titan, who were a true challenge. Ertugrul's beautiful sister Gökçe was made hostage by Ural and Titan, but was finally freed. Ural and Titan were unbeatable, unstoppable, and most aggressive, but both lost to Ertugrul and his army chief Turgut. Our drama unfolds with a short introduction, followed by the routine family life of Ertugrul. His brave mother Haima became the Kadi chief after the death of her husband. Haima's great patience, calm nature, and inspiring messages kept the Kadi tribe alive and well protected. Army Chief Turgut's sacrifices and bravery are also worth mentioning, as he was the right-hand man of Süleyman and Ertugrul. The story is a mixture of valor, bravery, romance, obsession, death, separation, and the reunion of souls after death. Ertugrul's first wife and true love Halima fell in intense love, got married and had 3 sons with Ertugrul. Ilbilga, the second wife of Ertugrul, was playful, mischievous, but a brave woman who fought against her own people to save the life of Osman, the 3rd son of Ertugrul and Halima. The main character with several hearts due to his calmness, dignity, pride, valor, and helpfulness. Ertugrul is a memorable character and the true pride of Turkey. Asabri is fortunate to have found the best cast within the New York community. Allow me to introduce our very talented cast. We have Gurpreet Singh in the lead role as Ertugrul, Ravinder Singh as Turgut, Mayank Goyal as Süleyman, Ural, Ahmed, and Molvi, Shima Rathore as Hema, Julius Leopold as Titan, Pampo Sheikh as Gökçe, Chartak Bakci as young Osman, Gargi Bakci as Halima Hatun, and myself as a Turkish dancer. Please sit back, relax, and enjoy the Silver Jubilee drama, Ertugrul Gazi, and kindly maintain silence during the presentation. Asabri is sincerely thankful to this beautiful audience. Thank you. अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। अस्सलाम वालेकुम सरदार सुलेमान। वालेकुम अस्सलाम गजनफर आगा, खुश आमदीद। सफर अच्छा गुजरा होगा। मेरे सरदार, आपसे मिलकर मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है।
मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से यह हकीर सा नजराना कबूल फरमाइए आप। मैं आपके लिए कुस्तुनतुनिया की सौगात लेकर आया हूँ। जहमत की तुमने। कुर्तोग लो, हकदारों में तकसीम कर दिए जाएंगे सब। जो हुक्म आपका। हाँ, तो यहाँ पर आते हुए तुमने और क्या क्या देखा, बताओ हमें। काश के मैंने कुछ सुना ही ना होता। काश के ये सब कुछ देखने से पहले अंधा हो जाता मैं। खैरियत? सुल्तान अलाउद्दीन ने कोनिया फतह कर लिया, मगर वो भागे हुए शहजादे से बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आता है। लातीनियों ने कुस्तुनतुनिया तबाह कर दिया है। सारे मकामी लोग हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं। हर तरफ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहत पड़ चुका है, लोग बेयारो मददगार हैं। अच्छा, और सलेबियों की क्या खबर है? हमेशा ही से वो लोग तो हमें दुश्मन ही गर्दानते हैं। उनके पादरी मुसलसल उन्हें भड़का रहे हैं और शहजादे को हमले के लिए उकसा रहे हैं। और हम मुसलमान आपस में ही दस्तों गिरेबान हैं, खून खराबे में मसरूफ हैं। नफरतें फैलाने के अलावा और क्या किया हमने? अनातोलिया से बसरा तक आग ही आग है। बहुत खून खराबा भी हुआ है वहाँ। खुदारा आग और खून की बात ना करें। सरदार मोहतरम, कारोबार करना चाहता हूँ, बाजार में आपकी इजाजत दरकार है। इजाजत है। जज़ाकल्लाह। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह, ये लिबास तो बहुत जच रहा है तुम पर हलीमा। तुम तो किसी महल की शहजादी लग रही हो। क्या हुआ? क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? अरे नहीं, मुझे बस तारीफ सुनने की आदत नहीं है अपनी। रुको, एक चीज की कमी रह गई। तुर्कुत लेकर आया था ये मेरे लिए। अरे तो फिर इसे मुझे तो नहीं पहनना चाहिए? क्यों नहीं पहनना चाहिए? तुम पर तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिखाओ जरा। जच रहा है। शादी हो गई तुम्हारी? बस दुआ करो हिजरत हो जाए यहाँ से। इंशाल्लाह उसके बाद हो जाएगी शादी। आई किस तुम्हारे लिए एक सिपाही की बीवी बनने में मुश्किल नहीं होगी? अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो कोई मुश्किल नहीं होगी मेरे लिए। बस अल्लाह उसे हमेशा अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, हर मुसीबत से बचाए। तुम्हारे बाल बांधूं अगर कहो तो? हाँ, मैं बांध लूंगी। क्या तुम्हें कोई पसंद है? वालिदा के फौत होने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बाबा और छोटे भाई का ख्याल रखना अव्वलीन तरजीह है मेरी। और मुझसे शादी कौन करेगा? ऐसा क्या है मुझ में? अरे ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम इतनी हसीन हो, देखना तुम्हें बहुत जल्द एक दिलो जान से चाहने वाला मिलेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं झूठी तारीफ कर रही हूँ तुम्हारी। रुको जरा, देखो इसमें। अर्तुगरुल साहब, वक्त है आपके पास? हाँ बिल्कुल, कहीं क्या हुआ? वो दरअसल मुझे बात करनी है आपसे। कहिए, सुन रहा हूँ। कारा तो इधर आया था कल, हमें मांग रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से ये बेगुनाह लोग मुश्किल में आ जाएं। बाबा ठीक हो जाएं, हम चले जाएंगे फौरन यहाँ से। पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए, ये नहीं हो सकता हम किसी जालिम का साथ दें कभी। कारा तो इधर बहुत जालिम है, उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं होगा। परेशान मत हो आप, जिसने जिम्मेदारी दी है वो इसे पूरा करने की ताकत भी देगा। खैरियत? बहुत रंजीदा हूं मैं। आओ बैठो यहाँ। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मगर दिल पर बोझ है मेरे। मुश्किल खड़ी कर दी मैंने। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मगर मेरे लोग तो बेकसूर हैं। तुमने तो सिर्फ फर्ज पूरा किया है अपना मेरे बेटे। तुम्हारे इल्म में नहीं था ये कि ऐसा हो जाएगा। और तुम किन लोगों के खिलाफ जा रहे हो तुम्हें इस बात का भी इल्म नहीं था। मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा कभी भी किसी मजलूम पे ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है वालिदा। तुमने बिल्कुल ठीक किया। दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वक्त किस मोड़ पे ले आए ये जानना किसी के बस में नहीं। किस्मत के लिखे को कभी कोई अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता, यही हकीकत है। क्या
क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मुझे गुंदूकदू को भेजना चाहिए था? जी हाँ, उसे इस काम का तजुर्बा भी है। उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया है, खुदगर्जी की आग में जल रहा है और मुझे आंख बुझाना आती है। अपने अंदर की आवाज को सुनो। तुम्हारे मेहमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी कबीले पर है। उनकी तरफ से तुम्हें बेफिक्र होकर अपने मकसद को हासिल करना है। हलब से खाली हाथ मत लौटना। काई कबीले की इज्जत की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है। तुम्हारी नाकामी कबीले की नाकामी है। अल अजीज से किसी भी सूरत में हमें जान छुड़ानी है, याद रखना। और इसके लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। मगर याद रहे, अपने दीन की इज्जत और नामूस का सौदा हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। अपने दीन को हमेशा सरबुलंद रखना। दिखा दो उन्हें कि एक सच्चा मुसलमान अपने मजहब का पासदार होता है। अल्लाह हामी व नासिर हो। आपने शरफ बख्शा है मुझे मुंतखब करके। दुआ कीजिएगा कामयाब लौटूं मैं। तो रवाना हो रहे हैं आप? किस वक्त? सुबह सवेरे ही निकलना होगा हलब के लिए। तैयारी कर ली आपने? सिपाही हमेशा तैयार रहता है। दुरुस्त। आदत हो जाए तो सब आसान हो जाता है। पर आदत होने से मुश्किल भी हो जाती है। ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं साथ हैं आपके। हर मुश्किल आसान हो आपकी। खैरियत से जाएं आप और खैरियत से वापस आएं। कामयाबी मुकद्दर हो आपका। मैं अपने मकसद में कामयाबी और अपने लोगों की खुशहाली के लिए पुरुम्मीद हूँ। आपके बाबा को खुशी होगी। और तुम्हें? मुझे? मैं तो जा चुकी होंगी तब तक। क्या मतलब? मेरे आने तक तुम्हारे बाबा सफर नहीं कर सकते? दुआ है सफर अच्छा गुजरे आपका। अपना ख्याल रखना। अगर वो ताजिर और दमीर ना होते तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल चुका होता। वो कारा तोयकर कब तक किसी तरह अपनी बदमाशियां करता रहेगा? नोमान कारा तोयकर के लिए कितना अहम है इस बात का अंदाजा अब हुआ हमें। वो हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहेगा। कारा तोयकर इस मकसद के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। आप क्या करेंगे? जब तक करतुरुल कोई अच्छी खबर नहीं लाता, हम जंग की तैयारी यही करेंगे। वो जो मेहमान की बेटी हलीमा है, उससे मिले हैं आप? नहीं। मिलवाऊंगी। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत मेहनत कर रही है पर्दों की सफाई के लिए। कामयाबी मिली उसे? पर्दों की सबसे ज्यादा कीमत मिलती है बाजार में। इंशाअल्लाह सुलेमान, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो हलब जाने के बाद हम अर्तुरुल के निकाह के बारे में सोचेंगे। पहले हमारा अर्तुरुल कामयाब वापस आ जाए, फिर सोचेंगे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मिजाज कैसा है उसकी बहन का। गोगचे सबसे अलग है, बहुत प्यारी बच्ची है। शायद छोटी बहन को यहाँ पर देखकर अपनी अकल इस्तेमाल कर ले और हमारी फर्माबरदार हो जाए। गोगचे से भी उसकी मर्जी के बारे में पूछा है किसी ने? और अर्तुरुल, उससे भी तो पूछ लो। आप बेफिक्र हो जाएं, मालूम हो जाएगा जल्द। गुंदूगदू का गुस्सा खत्म हो गया, शुक्र है अल्लाह का। काफिले की रहनुमाई जचती है उस पर, जिस तरह लकड़ी काटना जचता है उस पर। इंशाअल्लाह उसकी जिद और अनापरस्ती भी खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह हाइमा, इंशाअल्लाह। काफिले को बहुत जल्दी तैयार किया है उसने, मामूली बात नहीं है। अपने कबीले की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता वो। अल्लाह उसका मददगार हो। मगर क्या? नहीं, कुछ नहीं। हाइमा, क्या छुपा रही हो मुझसे? पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है आजकल। घबराओ मत, दोनों बाखैरियत वापस आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खुदा का शुक्र है कि मैं कामयाब लौटा हूं बाबा, आपकी दुआओं से। उसने मेरी दुआ सुन ली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सर्द मौसम के लिए ठिकाना मिल गया, लेकिन रवाना जल्द होना होगा। काई कबीला तुम पे बहुत फख्र करेगा। हमारे लोग हर मुश्किल से निपटना जानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अल्लाह ने कबूल कर ली मेरी दुआएं। शुक्र है मेरे मालिक। रब हमेशा तुम्हें खुशियां अता करे। तुमने हमें कबीले वालों के सामने सुरखरू कर दिया।
वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, मेरी जान फिदा आप पर। अल्लाह आपको तवील उम्र अता फरमाए। अल्लाह इसी तरह तुम्हें हर मैदान में कामयाब करे। खुशकिस्मती है ये मेरी कि मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरा। इजाजत चाहता हूं। या अल्लाह, तेरी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तूने दुश्मनों के शर से बचाया और अर्तुरुल को मदद के लिए भेजा। उन जालिमों से हमें उसी ने छुड़ाया। मेरी तुझसे दुआ है कि तू भी कामयाबी उसके मुकद्दर में लिख दे। अर्तुरुल, आइकिस ने बताया कि तुम यहां पर हो। ठीक हो तुम? बिल्कुल ठीक हूं मैं। इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है, जिस मकसद के लिए गया था उसे मुकम्मल करके वापस आया हूं मैं। शुक्र है। खुदा ने मुझे सुरखरू किया। अल्लाह का शुक्र है कि आप हलब से कामयाब लौटे। कबीले के लिए नई जगह मिल गई क्या? मिल गई। शुक्र है खुदा का। अब कबीले वालों को सुकून मैसर आ जाएगा। हर कोई बेचैनी से मुंतजिर था आपका, खास तौर से आइकिस। आइकिस क्यों मुंतजिर थी? मेरा मतलब है आपके बाबा और हर किसी को आपके कामयाब लौटने का इंतजार था। हर किसी को, और मुझे भी। इसने बहुत मदद की मेरी हिम्मत बना रहा पूरे सफर में। जब भी किसी मुश्किल में घिरा मैं, इसने तुम्हारी कुर्बत का एहसास दिलाया मुझे। हलब से तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरे लिए लाए हैं आप? ये बहुत खूबसूरत है अर्तुरुल साहब। तुम्हारे अक्स ने इसे और भी खूबसूरत कर दिया है। ये ख्वाब लगता है मुझे, और हर ख्वाब एक दिन टूट जाता है। क्या हुआ हलीमा? किससे डर रही हो? कारा तोयगर से। उसने हमला किया था कबीले पर। वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा अर्तुगरुल। डरो नहीं हलीमा, मैं उसे ये सब नहीं करने दूंगा कभी। हलीमा, जानती हो मैंने जिंदगी में बहुत सख्तियां देखी हैं, लेकिन मैंने उनका सामना अपने जज्बा ईमानी से किया। लेकिन अब जिस मुश्किल का सामना है वो है तो बहुत दिलकश, मगर अजियतनाक भी है। तेरे बिन जीना है, और उसका हल सिर्फ तुम्हारे पास ही है। धड़काना हो जैसे ये इश्क है क्या दुनिया को। तुम्हारी इन गजाली आंखों में समझाए मैंने अपना आप खो दिया है, दिलों की जिसने दुनिया बदल दी है मेरी। कुछ ऐसा कर अभी तो इस दश्त में कदम भी नहीं रखा था मैं कि दिल इख्तियार से बाहर हो चुका है। सांस लिए बिन मर जाए मैं तुमसे ओ खुदा, बता दे क्या लगी। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं चलती हूँ। बात सुनो मेरी। हमने तो बस इश्क है किया। अगर आज न कहा तो कभी नहीं कह पाऊंगा। ओ खुदा, हलीमा, मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। तुम्हारे सामने एतराफ कर रहा हूं कि तुम ही इस दिल की मलिका और हुक्मरान हो। आप बहुत सच्चे और बड़े दिल के मालिक हैं अर्तुगरुल साहब। हमेशा आपकी मकरूज रहेंगी हमारी जिंदगी। तुम्हारे दिल की आवाज नहीं है, जबान से कह रही हो। दिल की बात बताओ हलीमा। जो दिल में है वही मेरी जुबान पर है अर्तुगरुल।
से बिछड़ी है ये तस्वीरें। रुक जाओ हलीमा। दुनिया ये जीत गई, दिल हार गया। मेरी मौत पर आंसू न बांध। आखिरी सांसों तक मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह की शहादत है और दूसरी चीज तुम्हारी मोहब्बत है। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जो भी जितने पल जियूं उन्हें तेरे संग जियूं, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जियूं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मो जा पे आ तेरी खुशबू ओढ़ लूं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ। तुझसे है मुझको पाने, यादों के वो नजराने, एक जिन पे हक हो बस मेरा। तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई तेरी आंखों में मिलूं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। भाई पहले हम उस तरफ जाकर अतराफ का जायजा लेते हैं, संभल के। तेरा शुक्रगुजार हूं या रब कि अपनी कुदरत को देखने का मौका दिया तूने, अपनी तख्लीक से फैज़याब किया और नेमतों से नवाजा। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे सिरात मुस्तकीम पर कायम रखा और एहसान किया कि बहादुर फर्जंद अता किए मुझे। तेरा बहुत शुक्रगुजार हूं। बाबा 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 बाबा। तुम दोनों के हवाले अब कबीला, उसकी हिफाजत करना, हर बुरी नजर से बचाना, जिस तरह एक बाप अपनी औलाद को बचाता है। अपने अजदाद का नाम रोशन रखना और सल्जुक सल्तनत से भी वफादार रहना और एक दूसरे से कभी अलग न होना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको जन्नत में आला मकाम मिले सुलेमान। मैं नियत करता हूं नमाज जनाजा की, अल्लाह की रजा के लिए और इस मैयत की दुआ के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कहानी सरदारों के सरदार सुलेमान शाह की है, जिसने कभी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, जो कभी अदलो इंसाफ और जुर्रत व बहादुरी से पीछे नहीं हटा। तुर्कों की तारीख का एक ऐसा गौहर नायाब जिसने अपने आबा व अजदाद का मान रखा, जिसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ आइंदा आने वाली नस्लों को सौंपा। अल्लाह तुम्हारी मंजिलों को आसान करे। बाबा बहुत पुरसुकून रुखसत हुए। वो ऐसे ही रुखसत के हकदार थे। जन्नत में मुकाम बुलंद हो, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। उनकी वसीयत थी कि अनातोलिया की तरफ पेशकदमी करें। एक बार फिर मुश्किल दिन शुरू हो गए हलीमा। तो क्या हुआ, मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगी अगर आप मेरे साथ हैं। ये कबीला ही मेरा वतन है अर्तुरुल। अल्लाह कभी मुझे तुमसे जुदा ना करे। अब हमें सुलेमान शाह के बगैर कबीले के मुस्तकबिल का तयन करना है। मंगोल अनातोलिया पे चढ़ाई की तैयारी में है। मंगोलों के छोटे छोटे लश्कर अनातोलिया के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि जुल्म को जड़ से खत्म कर दिया जाए। ये सिर्फ हमारी जंग नहीं, बल्कि तमाम ओस कबाइल मंगोलों की बर्बरियत का निशाना बन सकते हैं। इसीलिए तमाम कबाइल मुत्तहिद होकर अनातोलिया में जमा हो रहे हैं। अगर आज हम मुत्तहिद न हुए, एक साथ खड़े न हुए और आपस की नाइत्तेफाकियों को बढ़ाते गए तो फिर दरिंदा सिफत मंगोलों के लिए बहुत आसान शिकार साबित होंगे हम। मैं अभी भी यही कहूंगा कि हमें मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। सुलेमान शाह ने इस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए सरतोड़ कोशिश की। एक जानिब सलीबी है तो दूसरी जानिब मंगोल, और दुनिया में एक नया और भयानक मंशूर बनने जा रहा है, जिसमें खून रेजी और जुल्म और बर्बरियत को गलबा रहेगा। इसे या तो हम बुज़दिलों की तरह तस्लीम कर लें या बहादुरी से उसका मुकाबला करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस फानी दुनिया में जब तक हम जिंदा रहें, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करें और जुल्म का खात्मा कर दें। और मैं ये कहूंगा कि मंगोलों से इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने हमारे बच्चों को, हमारी माओं को और हमारी बहनों को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। अगर आज हम इनके खिलाफ खड़े न हुए तो ये दुनिया जुल्म से भर जाएगी। तो फिर क्या कहते हैं आप, अनातोलिया की तरफ हमें पेशकदमी करनी चाहिए या नहीं? अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। काई कबीला अनातोलिया को हयात नौ की नवीद देने के लिए आज़िम सफर हुआ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, अपनी फतूहात से दुनिया की तारीख बदलते चले गए। उनके अज़्म और हिम्मत के आगे जुल्म ने अपने घुटने टेक दिए और अदलो इंसाफ का बोलबाला हुआ। बंद करो ये बकवास। मैं यहाँ तुम्हें जुल्म से निजात दिलाने के लिए वापस आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा वकार वापस लौटाने आया हूँ, और तुम लोग मेरी बात मानने की बजाय मुझे आंखें दिखा रहे हो। हाँ, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हमारे सरदार आलियार साहब हैं। असल जालिम तो तुम हो जो अपने ही लोगों पर काबिज होना चाहते हो। मेरी मुखालफत करने वाला अब कोई नहीं बचेगा। कोई और है जो मेरी मुखालफत में आना चाहे? हाँ, जब चावदार की खोई हुई साख बहाल हो जाएगी तो तुम सब मुझसे रहम की भीख मांगने आओगे। फतह हमारी है सरदार, आप ही हमारे सरदार हैं। फतह हमारी है सरदार, आप ही हमारे सरदार हैं। मुझे कबीला छोड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन आज मैं फाते हूँ। शुक्रिया मेरे जंगजुओं। जहन्नुम में जाओगे तो। बहादुर जवानों, कबीले के मुअज्जिज़ीन और सरदारान, बिलाखिर
हमारे कबीले में इंसाफ का बोलबाला हुआ। अपने बाबा का औताक मैंने आपकी मदद से गद्दारों से वापस ले लिया है और अब इंतकाम का वक्त आ चुका है। अर्तुरुल और आलियार को अब जुल्म का हिसाब देना होगा। आपके ताउन से मैं चावदार कबीले को इस सरजमीन पर खुद मुख्तार बनाऊंगा। ये आप सबकी फतह है। आपसे कहा था वालिदा मैंने, ये मलून इंसान जब तक जिंदा रहेगा इंतकाम की आग में जलता रहेगा। अर्तुरुल जब तक मौजूद है बेटी, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। वो हमारी मदद करने जरूर पहुंचेगा। कैसे वालिदा? उन्हें तो इस बगावत की खबर भी नहीं होगी। इसका कैसे सामना करेंगे? इसके आगे खुद को कमजोर जाहिर मत करो। अल्लाह ने चाहा तो अर्तुरुल हमारी मदद को जरूर पहुंचेगा बेटी। तुम्हारा अंजाम करीब है उराल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गलत इंसान का रास्ता सही नहीं हो सकता। तुम्हें अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। बेफिक्र हो जाओ तुम। इन सब को खत्म करने के बाद तुम्हें सादितीन के पास भिजवा दूंगा, लेकिन कीमत तो वो भी चुकाएगा। उसे भी जल्द मालूम हो जाएगा कि मेरा साथ छोड़ने का क्या अंजाम होता है। मैं चावदार कबीले के सरदार जानदार का बेटा उराल हूँ। मैंने वादा किया था कि अपने बाबा और औलाद का इंतकाम लेकर रहूंगा, और अब तुम सब देखोगे कि मैं अपना वादा इज्जत के साथ निभाऊंगा। इज्जत? तुम इज्जत का मतलब क्या जानो? अर्तुरुल जब तक जिंदा है उराल, तुम पागलों की तरह बस अपनी जबान से जहर उगलते रहोगे। तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। न ही अर्तुरुल और न आलियार जान सकता है कि तुम्हारा क्या अंजाम होने वाला है। तुम्हें मुझसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। कितने ही गद्दारों के ख्वाब टूटते हुए देखे हैं मैंने उराल। तुम्हारा ख्वाब भी टूटने वाला है। यहाँ मौजूद सब देखेंगे कि तुम्हारा अंजाम कितना इबरतनाक होगा। रहम करें इन पर। क्या आप इतने कमजोर हैं कि औरतों पर जुल्म करेंगे? आज छोड़ दीजिए इन्हें, और अगर आप में ताकत है तो इनके मर्दों से लड़े। अर्तुरुल का तो सामना भी नहीं कर सकता ये बुज़दिल, जो दुश्मनों के किले में पनाह ले। उससे और तवक्को भी क्या की जा सकती। ये गद्दार अपनी ताकत सिर्फ खवातीन पर ही दिखा सकता है। कहाँ है तुम्हारा बेटा? हाँ, कहाँ है वो? कब आएगा तुम्हें बचाने? देखते हैं वो मेरी तलवार का मुकाबला कर सकता है या नहीं। अर्तुरुल सरदार अगर यहाँ होते तो तुम्हारा सर तन से जुदा हो चुका होता। तुम एक गद्दार हो, और गद्दार सिर्फ साजिशें ही करते हैं। गद्दार? हाँ, गद्दार। छोड़ दो बदबख्त, छोड़ो। एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ लड़वाने का क्या अंजाम होता है, अब तुम्हें पता चलेगा। रुक जाओ सिपाहियों। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारे लिए एजाज है। अल्लाहु अकबर। नहीं, छोड़ दो, रहम करो इन पर। मेरे हर दुश्मन को मरना होगा, मरना होगा। जाओ उधर, होश जाओ। अर्तुरुल आ गए वालिदा। अल्लाहु अकबर। खवातीन को अपनी ढाल बनाना और झूठ बोलकर मकसद हासिल करना कब से तुर्कों की रिवायात बन गई ओराल, जिसे तुम इंसाफ कह रहे हो। ये इंसाफ तो काफिरों के यहाँ भी नहीं। मुझे सरदार उराल मुखातिब करो, क्योंकि इस कबीले का सरदार अब मैं हूँ। ना हमारे सुल्तान और ना ही तुर्क कबाइल तुम्हें कभी माफ करेंगे उराल। जब तक जमीनों आसमान मौजूद है तब तक तुर्क कबाइल की रिवायात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तुमने ये कोशिश की है उराल, कीमत अदा करने का वक्त आ गया है। हथियार फेंक दें सिपाही। तुम्हारे जराइम न सिर्फ हमें बल्कि हमारी रियासत और भाइयों को भी बर्बाद कर देंगे, जो इस सरजमीन को अपना मस्कन बनाना चाहते हैं। तुम्हारा अंजाम बिल्कुल साफ है। तलवार फेंक दो अपनी। बेहतर है कि रिवायात की पासदारी करो। सिपाहियों, मार डालो सबको। उठो। छोड़ो मुझे। खलीफा सुल्तान। पीछे रहो वरना जान से मार दूंगा मैं इसे। औरत को ढाल न बनाओ, हिम्मत है तो सामना करो। मेरे साथियों, सिपाहियों, हमला करो। अर्तुरुल।
मैं तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगा अर्तुरुल, जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम और तुम्हारे जैसे गद्दारी का ताज पहनकर समझते हैं कि बादशाह बन जाएंगे। जब तक तुम जैसों को जहन्नम नहीं भेज देता, तुम्हारे सर काटने से पीछे नहीं हटूंगा मैं। जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम, मगर छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें, सुना होगा ना ये दो दिलों का नगर। रौनके हैं दिल के दर पे, रौनके हैं दिल के दर पे, धड़कने हैं सुरमई, मेरी किस्मत भी तुम्हारे साथ बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब कई दिन है, सोना और चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नज़्म में सजाया तुम्हें, पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नज़्म में सजाया तुम्हें, पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। कहाँ रह गए अर्तुरुल, कहाँ रह गए? अर्तुरुल सरदार आ रहे हैं। शुक्र है कि आप आ गए। एरिस, एरिस यहाँ पर क्या कर रहा है अर्तुरुल? एरिस नहीं हलीमा, अहमद। अहमद ने अपना बोसीदा और कसीफ लिबास उतारकर हक के रास्ते को चुन लिया है। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती सरदार। आपके साथ, हमारे बेटे के साथ और सिपाहियों पर जो जुल्म किया, उसके बाद इस पर कैसे यकीन कर लूं? हलीमा खातून, आपके बेटे और कबीले के खिलाफ जो जुल्म मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और तुम सब भी अर्तुरुल सरदार के बहादुर सिपाही हो, मैं सबसे माफी चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी उम्र यूं ही गवा दी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक सिपाही बनूंगा। इस्लाम और अर्तुरुल सरदार की खिदमत में जिंदगी बसर करूंगा। अल्लाह से दुआ है कि मुझे माफ कर दे। हलीमा, मत करो ऐसा। अहमद की नीयत साफ है। अगर तुमने ऐसा किया तो सारी उम्र तुम्हारे दिल पर बोझ रहेगा। मैं गवाही देता हूं कि अहमद सच्चा है। अल्लाह तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह माफ फरमाए अहमद सिपाही। तुम्हारे माजी के निशानात को मिटाना हमारा और ईमान पर कायम रहना तुम्हारा काम है। हक के रास्ते पर चलने वाले तुम हमारे भाई हो। बहुत शुक्रिया हलीमा खातून। सिपाहियों, सादतिन ने मलून गोक्तु को अहमद को जान से मारने के लिए इसके ताक़ुब में भेजा। गोक्तु अहमद की जान लेने ही वाला था कि मैंने उसे जहन्नुम भेज दिया। सादतिन जिलावतन होने के बाद भी अगर इस हद तक गिर सकता है कि यह सब करने की जसारत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके फितनों का सिलसिला अभी जारी है। मैं जानता हूं और मुझे यकीन है कि सुल्तान मुअज्जम की जान खतरे में है। ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए यह हरगिज मुमकिन न होगा कि कबीले लौट जाऊं आपके साथ। मेरे सिपाहियों, हलीमा सुल्तान मेरी अमानत है। मुझे यकीन है कि तुम इनकी जान की सलामती के साथ इन्हें पूरी हिफाजत से कबीले पहुंचाओगे और मैं सुल्तान की जान बचाने के लिए और उन्हें उनके ख्वाबे गफलत से बेदार करने के लिए वापस रवाना हो जाऊंगा। अल्लाह हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया सरदार। हलीमा, अहमद हमें तीतान मलून के छुपने की खुफिया जगह से आगाह कर देगा। तुम्हें फौरन कबीले पहुंचकर पैगाम पहुंचाना है।
तुर्गो जी संभाल लेंगे सब। जैसा आपका हुक्म साहब। तीतान सेंट स्टेफन वादी के दामन में एक गार में रुपोश है। वादी में दाखिल होते वक्त बाएं जानिब एक दरिया बहता नजर आएगा जो आगे मशरिक में मुनकसिम हो जाएगा। दरिया के साथ साथ आखिर तक चले जाएं। वहां आपको एक बहुत बड़ा दरख्त मिलेगा। गार का दाखिली रास्ता दरख्त से छिपा हुआ है। वो मुकम्मल तौर पे पत्तों से ढका हुआ है, लेकिन गौर से देखेंगे तो नजर आ जाएगा। क्या खबर है? अजीज और अर्तुरुल कारवान सराय में मौजूद हैं। अर्तुरुल और उसके सिपाहियों के हाथ बांध दिए गए हैं। बहुत अच्छे, अब हमारे लिए और भी आसानी हो जाएगी। वो कभी वहां से नहीं निकल पाएंगे। तुम में से कुछ सिपाही एंग्लूस के साथ बाजार के करीब इंतजार करेंगे और बाकी सिपाही मेरे साथ घोड़ा गाड़ी में छुप के बाजार में दाखिल होंगे। मौका मिलते ही हम हमला कर देंगे। ताजिरों के भेस में सिपाही मेरे इशारे का इंतजार करेंगे। जाओ, मेरे हमला करते ही तुम भी अपने आदमियों के साथ बाजार पर हमला कर देना। उम्मीद है इस बार मायूस नहीं करोगे तुम। अगर अपना सर जमींदार को भिजवाना नहीं चाहते तो गलती मत करना। तुर्गुर को हर कीमत पर खत्म करना है, समझ गए सब? तुम चारों मेरे साथ आओ। मेरे इशारे के बगैर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुर्गुत कहाँ है? पहले खवातीन को हमारे हवाले करो। तीतान! तुर्गुत, तैयार हो जाओ सिपाहियों। हमला करो जहन्नुम के सिपाहियों। तीर अंदाजों, होशियार हो जाओ। बेहतर होगा कि तुम अपने हथियार डाल दो। न ही हथियार डालेंगे हम लोग, न ही अपनी हुकूमत तुम्हारे मालिक के हवाले करेंगे। मार डालो इन सबको। मासूम बच्चों को और खवातीन को अगवा करने की आज तुम्हें सजा देंगे हम। अब फरार होने की कोई राह नहीं मलून। अब तुम्हारे गुनाहों के हिसाब देने का वक्त आ गया है। खेल खेला तुमने, असल खेल तो अब शुरू होगा और ये एक खूनी खेल होगा। तुमने मेरी खातून को अगवा किया था, मेरे बच्चे को अगवा किया था। तुम्हारी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें मारता रहूंगा मलून। तुम्हें जहन्नुम वासिल करने का वक्त आ गया है तीतान। अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जान की भीख मांगूंगा तो भूल जाओ तुर्गुत। मैं ना एंग्लूस की तरह बुज़दिल हूं और ना ही एरिस की तरह अपने मकसद से गद्दारी करूंगा। तुम्हारे भीख मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मलून, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा सर भी मैं उसी तरह तुम्हारे बादशाह को भिजवाऊंगा जैसे जमींदार के बेटे का सर भिजवाया है। बादशाह तुम्हारे कबीले को कुचल कर रख देगा, याद रखना। अंजाम करीब है, बच नहीं पाओगे। तुम जैसों के बहुत सर उतारे हैं हमने। तुम्हारी आमाज का और तुम्हारा किला तुम ही पर ढा दिया हमने। तुम्हारे बादशाह को बुज़दिलों की तरह महल में बैठने के बजाय सामने आकर लड़ना होगा। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस तरह सामसा को मौत के घाट उतारा था, वो लम्हा अभी तक याद है मुझे। मेरी तलवार के हर वार से किस तरह चीखा था वो। बहुत खुशी हुई थी उसे मारकर। उसके ही खून में नहला दिया था उसे मैंने। मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरा था वो। हलीमा, खुश आमदीद अर्तुरुल। शुक्रिया। हलीमा, आज आंखों की चमक ज्यादा है, मुस्कुराहट भी पहले से ज्यादा है। क्या हुआ, खैरियत तो है? अर्तुरुल, कई दिनों से महसूस हो रहा था मुझे, लेकिन आज जब दाई के पास गई तो तस्दीक हो गई। मतलब? तो क्या? मैं उम्मीद से हूँ अर्तुरुल। अगर ये लड़का है तो अल्लाह हमें उस्मान की नेमत से नवाज रहा है। उस्मान? अर्तुरुल, संभालिए खुद को। क्या कर रहे हैं आप अर्तुरुल? अल्लाह अल्लाह! मुझे ख्वाब में ओवोज अजदाद ने खुशखबरी सुनाई थी। हमारा उस्मान आने वाला है हलीमा। उस्मान
मुझे भी यही ख्वाब आया था अर्तुगरुल। इब्नुल अरबी मोहतरम ने उस्मान को मेरी गोद में दिया था और फरमाया था कि ये बच्चा पूरी दुनिया फतह करेगा। इंशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ख्वाबों की ताबीर भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। हमारा उस्मान नई सरजमीन पर अजीम फातिह की तरह इस दुनिया में जन्म लेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अंदर आ सकती हूँ बेटा? अर्तुगरुल। आए वालिदा, आ जाए। क्या हुआ अर्तुगरुल? औताक के पार तक तुम्हारी आवाज जा रही थी। हलीमा, उम्मीद से हमारा फर्जंद उस्मान आने वाला है इंशाल्लाह। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने एक साथ इतनी खुशियां अता की हमें। बहुत मुबारक हो मेरे बेटे, बहुत मुबारक। वालिदा, जीती रहो मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी। एक और खुशी दी तुमने। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे मेरी बच्ची। शुक्रिया वालिदा, शुक्रिया। अर्तुगरुल मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें नेक और साले औलाद अता करे जो अपने अजदाद का नाम रोशन रखे। इंशाल्लाह वालिदा, इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ वालिदा, ये खुशखबरी जो हमने सुनी है इसके बाद हमारे रेवड़ के सब जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करके लोगों में तकसीम कर दिए जाए। कोई भूखे पेट न रहे, सबकी जरूरियात पूरी हो जाए, यतीमों को सदका किया जाए, कर्जदारों का कर्ज उतारे वालिदा। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस खुशखबरी पर जियाफत करेंगे जिसमें हर खास आम को इजाजत होगी कि वो हमारे दस्तरखान पर हो। बेटा अल्लाह हमेशा सलामत रखे तुम्हें। बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा। चलती हूँ मैं। हलीमा चलो, अल्लाह की तरफ से इस मेहरबानी पर नमाज शुक्र अदा करें हम। जैसा आप कहें साहब। उस्मान को मैंने उसकी पहली ग़ज़ा पिला दी है वालिदा। पुरसुकून हो गई हूँ अब मैं। मेरी बहादुर बेटी, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तुम इसे शीरे मादर पिलाती रहोगी। दादी की जान, ओए दादी की जान कुर्बान हो जाए तुम पर। ओए 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 ओए। मुझे इस जहान में अर्तुगरुल की ज़ौजा बनना था, हाइमा खानम और सुलेमान शाह की बहू बनने का शर्फ हासिल होना था। अर्तुगरुल और मुझे अल्लाह ने 3 शेर जैसे फर्जंद दिए। कौन जानता था मुसलसल मुश्किलात में घिरी बेमकसद इधर से उधर घूमती हलीमा सुल्तान को अजीमुशान अर्तुगरुल सरदार अपने दिल में जगह देंगे और अपनी ज़ौजा बनाएंगे और 3 फर्जंदान से नवाजेंगे। अपने बाप के लिए, अपने कबीले और रियासत के लिए अपने नाम की तरह काबिले फख्र बहादुर मर्द साबित होंगे इंशाल्लाह। उस्मान, मुझे आता होने वाले बहादुर बेटे, तुम्हारी माँ तुम पर कुर्बान हो जाए। मेरा बेटा ऐसे क्यों रो रहा है आर्तुक भाई? देखता हूँ मैं। हलीमा, हलीमा क्या हुआ है तुम्हें? हलीमा, हलीमा खुदा के लिए जवाब दो मुझे। हलीमा क्या हुआ? क्यों रो रहा है ये? अल्लाह के हुजूर पेश हो गई। बेटी
मेरी बेटी, या अल्लाह तूने ये कैसी आजमाइश में डाल दिया। अपनी सारी जिंदगी दलेरी से मुश्किलात का सामना किया, कभी शिकवा न किया, हर मुश्किल को खद्दा पेशानी से सहती रही। तुमने हमारे खानदान का ख्याल रखा और हमारे बच्चों का भी। मैं तुमने जो किया उसका हक अदा नहीं कर पाऊंगा मैं। तुम जानते हो मौत का मतलब जुदा होना नहीं है। जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो उस जहां में भी साथ होते हैं। बारिशों की बातों में आना नहीं, मेरे सिवा कहीं तुम जाना नहीं। सारी उम्र मेरे संग भीगना, मुझे तेरे बिना अब रहना नहीं। हो सके तो यहीं पर रह जाओ, कसम तुम्हें कहीं नहीं जाओ। ये दूरियां कुछ कम करो, धड़कन मेरी सुनते रहो। कसम तुम्हें कहीं नहीं जाओ। ओ धीरे धीरे चलो करीब आओ। أنا بتحدى كل الأعمار من 7 حتى 90، شافوك وعقلهم ما طار. أنا بقطع إيدي اليمين، أنت منك عادي يا بعي. كل منطقي بيقلي مثل الطلقة الروسي، إذا ما قتلت بتشلي. منك عادي ولي هيك المنطقي بيقلي مثل الطلقة الروسي، إذا ما قتلت بتشلي. لك داعي 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 عشفاتي موز طباعي، داعي 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 دقات قلبي اسماعي. يا بي مش بس القالب غالب، الله اللي خلق الحلوين بعد كسر القالب. الله اللي خلق الحلوين من بعد كسر القالب. ما عاد في اتحمل، انا بدي روح واحكيها. الله حلقها مكمل، مش كل يوم بلاقيها. انا بدي روح واحكيها. الله حلقها مكمل، مش كل يوم بلاقيها. لك داعي 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 عشفاتي موز طباعي. لك داعي 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 دقات قلبي اسماعي. داعي داعي عشفاتي موز طباعي. بحياة الله داعي دقات. भाई आपको बताना है कि मोहबिरों ने खबर दी है कि हमारी सरहदों पर मंगोलों के गश्ती दस्ते देखे गए हैं। कोसेदा की जंग के बाद उनकी नजर रियासत पर है। अनातोलिया में हर तरफ एक वबा की तरह फैल गए हैं और परेशान कर रहे हैं लोगों को। हमने ये जमीन अपनी तलवार के जोर पर हासिल की है और इसे बसाने के लिए अनथक मेहनत की है। सोत अनातोलिया का कल्ब है, रूह है हमारी। जब तक हमारा दिल इंसाफ के लिए धड़कता रहेगा, उम्मीद बाकी रहेगी। वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमारे कल्ब पर हावी होकर कोई बड़ा फितना पैदा करना चाहते हैं। यहाँ आतिश के हवारियों को यहाँ आने दीजिए भाई। हम उनका सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह डट कर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एहतियाती तदाबीर कर लो। ये वाज़े है कि वो यहाँ आए बगैर वापस नहीं जाएंगे। जैसा आपका हुक्म। कौन है ये तो जख्मियों को लेकर आ रहे हैं। देखो तो जरा। या अल्लाह खैर। उस्मान बेटा उस्मान को बुलाओ। जख्मी है। उस्मान 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 क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ तुम्हें उस्मान? उस्मान ये क्या हो गया तुम्हें? उस्मान उस्मान मेरे बेटे। ये तो बहुत जख्मी हालत। क्या हुआ है? किसने किया है ये कत्ल? मैं नहीं जानती किसने किया है ये। इन पर हमला हुआ था और हमने इन्हें बचा लिया।
उस्मान आंखें खोलो। इसे मुझे देखने दीजिए, सांस चल रही है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खून रोकना होगा इसका। ये खातून कौन है भाई? क्या खबर कौन है मालूम नहीं। फरिश्ता सिफत है या शैतान, न जाने कहाँ से आई है। क्या आप उन आदमियों के बारे में कुछ जानती हैं? गैर मुस्लिम थे वो लोग। सिपाही थे क्या? आम लोगों की तरह दिख रहे थे लेकिन लड़ने में माहिर थे। यह हादसा तुरना पहाड़ के दामन में हुआ है। फौरन वहां जाकर हर लाश को एक एक करके देखो। उस वक्त तक वापस ना लौटना जब तक उनके बारे में मालूम ना हो जाए कि वो लोग कौन थे। जो आपका हुक्म भाई। बाबा के हुक्म पे सामान खरीदने आई थी। रात सराय में कयाम करेंगे और सुबह रवाना हो जाएंगे हम। भाई शाम को अगर ये शिकार पर जाने की जिद करे तो हैरान मत होइएगा। तुमने फिर वही हरकत कर दी। मेरी तो जान ही निकाल दी थी उस्मान तुमने। मुझे बताओ उस्मान, कैसे हुआ तुम्हारे साथ यह हादसा? उन लुटेरों ने तुम पर हमला किया था या तुमने पहल की? मैं उन लोगों को बचाना चाहता था जिस तरह एक मर्तबा आपने जालिमों से वालिदा और उनके खानदान को बचाया। शुक्रिया इनका, ये सही वक्त पर पहुंच गई और उन जालिमों को मार डाला। इल्बिल के खातून, आपकी मदद की कोई कीमत नहीं। आज शब कयाम करें यहाँ। आप और आपके सिपाहियों की ज़ियाफत बाइस मसरत होगी मेरे लिए। आपकी दावत शर्फ का बाइस है, जरूर हाजिर होंगे हम। ये बहादुरी काबिल तहसीन है उस्मान, लेकिन आइंदा अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो खुद को महफूज करना सबसे पहले और फिर कबीले खबर भिजवाना। जो आपका हुक्म बाबा। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। अकेले चलते चलते होशाए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दिल में आ। अंधेरे मेरे गहरे सितारों से दे पहरे, मेरे गम की रात में हो तू कहकशा। हो वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था। मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। अभी हमारे बहुत से दुश्मन हैं जो बाकी हैं। एक एक करके उन सबको खत्म करना है हमें। यकीनन आप जो भी करेंगे वो हमारे और हमारे कबाइल के हक में बेहतर होगा। अब चाहे आपके सामने कोई भी दुश्मन खड़ा हो जाए, हमारा फर्ज है कि उसके खिलाफ लड़ाई में हम आपका साथ दें। आपकी इस सच्चाई और इंसाफ पसंदी पर मुझे कोई शुबा नहीं इल्बिल के खातून। हमें जो चीजें ताकतवर बनाती हैं वो है इत्तेहाद और ईमानदारी, और इसके बरक्स जो चीज हमारे दुश्मन के खिलाफ हमें लाचार और कमजोर करती है वो है आपस की नाइत्तेफाकी। अगर हम साथ खड़े होंगे तो मजबूत और ताकतवर होंगे, और कोई भी मुखालिफ ये जुर्रत नहीं कर सकेगा कि हमारा सामना करे। बगावत रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम करने होंगे। कबीले के सिपाहियों को मालूम होना चाहिए कि उनका सरदार रियासत का गद्दार था। मेरे भाई गद्दार हैं, ये बात मैं हरगिज़ नहीं जानती थी। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। इल्बिल के खातून, ये बहुत कड़ा इम्तिहान था, लेकिन सुरखरू हो गई हैं आप इस इम्तिहान में। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन ये जानने के इंसाफ का साथ देकर जान बचाने का जरिया बनी है आप मासूमों की। अर्तुगरुल सरदार, अगर आप ना होते तो मैं हकीकत से आशना कभी नहीं हो सकती थी। मेरी आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ था जो आज आपने हटा दिया और सच जाहिर कर दिया। आज के बाद मैं इसे अपना सबसे बड़ा एजाज समझूंगी। कैदियों को लेकर हम उम्रुल्लाह कबीले जाएंगे। जो आपका हुक्म भाई।
अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह 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 अल अज़ीम अल करीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व तूबु इलैहि। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि व बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअतु बअदल मौत हक़्क़ुन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उमर की बेटी इलबिल के सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल को अपने निकाह में कबूल करती हो? करती हूँ। कबूल करती हो? करती हूँ। कबूल करती हो? करती हूँ। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल उमर की बेटी इलबिलके को निकाह में कबूल करते हो? कबूल करता। कबूल करते हो? कबूल करता। कबूल करते हो? कबूल करता। गवाहान, क्या आप इस निकाह के गवाह हैं? जी हाँ। जी हाँ। मैंने गवाहान और आप सब हाजरीन के सामने इस निकाह की तकमील की। अल्लाह ये निकाह मुबारक करे। आमीन। आमीन। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। तू ही तू हर सू तू ही तू। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर। बैठ क्यों नहीं रही इलबिल के खातून? मुझे बताएं क्या सोच रही हैं? आए बैठे। सऊद, मुझे जिंदान जैसा लगने लगा था। मेरी जिंदगी पर हर तरफ गम के सियाह बादल छा गए थे। शुक्र है अब सब दूर हो गए हैं। मुझे मेरी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी आप ही ने दी है अर्तुरुल सरदार। चाहे कितने ही मुश्किल हालात रहे हो, कबीले को संभाला आपने। अब जब कभी मुश्किल में पड़ूंगा मैं, मुझे यकीन है कि कबीले और औताक को नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपका खुलूस और साथ ताकत बनेगा मेरी, और यही ताकत मुझे और कामयाबियां देगी। मुकद्दर में अब जुदाई भी लिखी हुई है। मेरे लिए ये एक एजाज है कि मैं अब सिर्फ आपकी बीवी ही नहीं बल्कि हक की इस जंग में आपके साथ बराबर की शरीक हूँ। आज से आपका हर फर्ज मेरा भी फर्ज है। मेरा खानदान बिखर गया, औताक बर्बाद हो गया। बहुत सी परेशानियों ने घेर लिया था मुझे। रोशनी की कोई किरण, उम्मीद का कोई दिया बाकी नहीं रह गया था। लेकिन अल्लाह ने उस मुश्किल वक्त में मुझे अपनी रहमत और फजल से नवाजा। मुझे एक खानदान दिया, एक बाइज्जत औताक दिया। बाज़ औक़ात इंसान अपने अमल से आजमाया जाता है, अपने माल से, और बाज़ औक़ात प्यारों के जरिए। आप आजमाई गई अपने अमाल से, अपने प्यारों के वजूद और उनकी मोहब्बत से, लेकिन कभी भी हक और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। इतने सालों बाद मेरी इस औताक को आज आप जैसी सादिक और बहादुर खातून नसीब हुई।
चलो बेटा, तो फिर शुरू करते हैं। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। हक ज़ात अल्लाह की। 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 अल्लाहु अकबर। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ उस्मान, रुक जाओ। अच्छी तलवार बनाने का यही तरीका होता है। रुको जरा। कल शाम तक तैयार हो जाएगी ये तलवार। उससे के वादे मैंने हमेशा निभाए हैं। गुजरे हुए सालों उस्मान और अब्बास बड़े होने के साथ साथ आज जानी और खूनी भाई बन चुके हैं। बाबा अर्तुगरुल ने जो आग दहकाई थे, उसी आग में दहक कर हमारी दोस्ती पक्की हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से ये दिन भी देख लिए। माशाल्लाह मेरे बहादुर, माशाल्लाह। अच्छा, तो तुम क्या कहते हो उस्मान? अर्तुगरुल गाजी कोनिया से अपना काम पूरा कर आएंगे? क्या सुल्तान और वज़रा उनकी पेशकश कबूल कर लेंगे? बताओ क्या लगता है तुम्हें? हमने इस आग को अकेले नहीं बल्कि सुल्तान और सलान के साथ मिलकर जलाया था। छोटे थे लेकिन अब जवान हो गए, काफिरों के सीनों पर सवार हो गए। इस जगह को अपना वतन बनाने के लिए मुसलसल जंग करते रहे। बहादुरी में तुम सबसे अलग हो। तुम एक अजीम काम करोगे इंशाअल्लाह। तुम मेरा नाम रोशन करोगे। कोई आपसे आगे नहीं निकल सकता। आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता बाबा। तुम होगे। अगर तुम मुझसे आगे न निकले तो रोज क़यामत जवाब लूंगा। जब से तुमने जिहाद की शमा रोशन की है तो काई और उसके सरदार सर उठाकर चल रहे हैं। जब तक तुम्हारा जज्बे जिहाद इसी तरह जिंदा रहा, तुम दुश्मनों को शिकस्त देते रहोगे और तुर्कों को फतह मुबीन से आशना करते रहोगे। लेकिन अगर तुमने राह बदलने की कोशिश की तो तबाही की तरफ चले जाओगे। हमारी जिहाद की आरज़ू को कोई नहीं मिटा सकता। ये बढ़ेगी, इसे बढ़ना चाहिए। ये मेरा वाहिद मकसद होगा बाबा। आज तुम अपनी माँ की कब्र पर वादा करो मेरे बेटे। वादा करता हूँ मैं आपसे बाबा, मुहाफिज बनूंगा मैं अपनी इक़दार का। अदल और इंसाफ कायम करूंगा। अपने लोगों की फरियाद सुनूंगा मैं, उनके साथ रहूंगा हर घड़ी। अब से काई सरदारान की राय के साथ सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब काई कबीले के नए सरदार हैं। अल्लाह पाक इसमें बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। कोई तो राह वो होगी
पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। मर जावा and it was indeed somebody's great success. अपनी शान और शौकत को पहचान जरा, बांध कफन हथियार उठा और मैदान में अपने हुनर तू दिखा। वक्त कटन अब आन पड़ा, दज्जाली सीने तान करा, खुद ही कर ले नस्लों के दीवा। ए मोमिन तू जोश दिखा दे, जोश में अपने होश दिखा दे, फिर एक बार ये नारा तू लगा। बिखरे फूल नहार बने हैं, ना ही दे कोई इनको तरजीह। मोती एक धागे में पिरो दे तो बनते